So let's see the solution of exercise 1 section B, calculation of normal reaction. So I will try to solve the questions without writing anything on board, and that's how you should try. Okay? Because some of the problems are very easy, we can just solve by seeing it. Clear? So just try to do that so that you will get a habit of doing it like that, and आप अपना टेस्ट में टाइम बहुत सेव कर पाओगे. क्लियर है? So we'll try to solve the problems without writing on board. We'll try our best. ठीक है? So first question B1, two blocks are in contact on a frictionless table. One mass has m and other 2m. A force F applied on 2m as shown in the figure. Now the same force is applied from the right on m in the two cases respectively. ठीक है? The ratio of the forces of contact between the two blocks will be. So basically I'll just make the diagram. So this is 2m, this is m, 2m, m. Once we are applying force like this, in second case we are applying force like this, it is the same force. Now what we have to find out, in the two cases respectively, the ratio of force of contact between the two blocks will be. So यहाँ पे जो contact force है, ये हमें find out करना है. Now this much data is given in the question. आपको ये सब फिर से लिख करके अपना time waste पेपर में बिल्कुल नहीं करना है. You have to just see, this is the situation. Now what we have to do, we have to find out what, if let's say this is n1, this is n2, then what is the ratio of n1 and n1 is to n2. ये हमें find out करना है. Now see how we will find out. First see कि हम कैसे find out करेंगे इसको. So क्या करना पड़ेगा भाई, force act हो रहा है, क्या करें, हाँ तो क्या करेगा, ये चलने लगेगा क्योंकि सब कुछ तो स्मूथ है, एनएलएम में सब कुछ स्मूथ होता है. सो दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग और दिस सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग. सोच के देखो, इसको अगर हमने फोर्स लगाया, दिस सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग. अगर इस पे हमने इस साइड से फोर्स लगाया, दिस सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग. इट विल हैव सम एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, इट विल हैव सम एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन. क्लियर? नाउ टेल मी, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी सेम और डिफरेंट? सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी सेम. फोर्स इज सेम, mass is same, acceleration is F by m. Acceleration is F by m. It means total force divided by total mass. So total force is F, total mass is 3m. It means the acceleration is going to be F divided by 3m. Total force is F, total mass is 3m. So in this case, acceleration is going to be in this direction. In this case, it is going to be in this direction. What will be the acceleration? It is going to be F divided by 3m. ठीक है? इतना भी हम, all these things we can do in mind. भाई देखा, F force लग रहा है, मास है 3m, एक्सेलरेशन आ गया F by 3m. क्लियर? नाउ आई वांट टू फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स. सो मैंने क्या बोला था कि ट्राई टू यूज द इक्वेशन व्हिच हैज मिनिमम नंबर ऑफ कैलकुलेशन. सो आइदर यू कैन यूज इक्वेशन फॉर दिस. पहले हमने क्या लिया, पूरे को सिस्टम लिया एंड देन वी कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन. पूरे को सिस्टम लिया एंड कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन क्योंकि वी हैड नो अदर चॉइस. इफ यू सी ओनली दिस ब्लॉक तो क्या आएगा, F and n1. How will you calculate? मतलब अभी हम क्या करते हैं वो करके देखते हैं जो हमें नहीं करना है. So if I write equation for this, F कैसा लगेगा इस पे नॉर्मल, towards the body, वो m जो है इधर पुश करेगा. तो F minus n1 is equal to, let's say इसका एक्सेलरेशन है a, 2ma, and for this इस पे कैसा लगेगा, उसी साइड लगेगा. क्या हो रहा है, F acceleration is in this direction, force is in this direction. So on this block, F minus n1 is equal to 2ma. इस पे n1 is equal to ma. n1 is equal to ma. Why I'll do all this? सीधा हमने क्या किया, पूरे को एक मान लो, नॉर्मल गायब, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, a is equal to F by 3m. So हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन is equal to F by 3m. Now what we have to do, भाई एक्सेलरेशन आ गया F by 3m. अब I can use this equation, मतलब I can study this block or I can study this block. What you will do? Definitely हम ये करेंगे. हम ये क्यों करें भाई, थोड़ा सा भी अगर even smaller calculation is increasing, don't use that equation. सीधा क्या यूज करो, ये यूज करो. क्यों? बिकॉज अगर आपने इसको यूज किया तो you don't have to write anything on the board या on paper. कैसे? यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू डू इट विदाउट यूजिंग पेन पेपर, बट जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि इफ यू विल ब्रिंग दिस इन योर हैबिट तो आपको एंड तक बहुत इजी हो जाएगा. यू विल बी एबल टू डू मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन योर पेपर जस्ट बाय सीइंग इट. ठीक है? बट फॉर दैट यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ इट. ऐसा नहीं कि हमने जब हम प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं, वी आर
writing everything, block बना रहे हैं and then we are drawing the free body diagram. If you will solve it like that, आपकी हैबिट में नहीं आएगा. So when you are solving the exercises, treat it like a test paper. Treat it like a test paper. Try to save time. Clear? Try to save time. Try to finish it very fast. So अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन आ गया F by 3m. Now I know on this block there are two forces acting, so I'll have to calculate. So let's just see this block. भाई इस पे एक ही फोर्स लग रहा है and acceleration is given. So we know mass, we know acceleration and there is only one force. So इस पे जो भी one force जो भी है वही उसका F net है. So just what we should do? भाई ओनली एक ही फोर्स लग रहा है तो वही तो F net होगा ना. जब एक ही फोर्स लग रहा है तो वही F net होगा. And F net is always m into a. On a body, F net is always m into a. So if a body has only one force acting on it, and if I know its acceleration, if I know its mass, I can find out that particular force. What will be m into a? M is, mass is m, acceleration is F by 3m. So इसमें सीधा हमारे पास आ गया n1 is equal to F by 3m into m. Mass into acceleration. n1 क्या आ गया, F by 3. Now again आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी बिल्कुल नहीं लिखेंगे. क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आ गया n is equal to F by 3. Now let's see in this case. यहाँ पे क्या हो रहा है? That force is acting on this block. Acceleration is going to remain same. Mass of the body, mass of the system is same. But अभी यहाँ पे क्या है कि इस पे भी ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग. इस पे भी क्या लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है. तो अगेन क्या होगा, n2 विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 2m इनटू F by 3m. तो ये क्या आ रहा है, 2F by 3 आ रहा है और ये आ रहा है F by 3. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई इट हैज बोथ द बॉडीज हैव सेम एक्सेलरेशन. इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस पे. सो बेसिकली होना क्या है, both the bodies are having same acceleration, both the systems are having same acceleration. इससे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं बट समझो इस चीज को. सेम, दोनों का सेम एक्सेलरेशन है. जस्ट सी कि भाई यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा उसको a एक्सेलरेशन, उस नॉर्मल का काम क्या है, उस नॉर्मल को इस मास m को चलाना है विथ एक्सेलरेशन a, और यहाँ पे नॉर्मल को 2m को चलाना है विथ एक्सेलरेशन a. तो कौन से केस में नॉर्मल ज्यादा होगा, इस केस में नॉर्मल ज्यादा होगा. कितना ज्यादा होगा, 2 टाइम्स. भाई यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, नॉर्मल दोनों में क्या आएगा, n1 इज इक्वल टू आएगा, इसको अगर हम a और b बोलें, मास ऑफ b इंटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे n2 आएगा मास ऑफ a इंटू एक्सेलरेशन. नाउ आई नो दिस इज सेम. ठीक है, दिस इज सेम. तो अब n1 और n2 ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, इट विल डिपेंड ओनली ऑन दी मास. तो यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है, इसका मतलब नॉर्मल यहाँ पे डबल लगेगा. बिकॉज इन दीज टू केसेस इसको सिर्फ नॉर्मल ही चला सकता है. दिस इज मूविंग बिकॉज ऑफ नॉर्मल. हमने फोर्स लगाया, इसने इस पे नॉर्मल लगाया इसलिए चला. हमने फोर्स लगाया, इसने इस पे नॉर्मल लगाया इसलिए चला. सो फॉर दीज टू ब्लॉक्स नॉर्मल इज ओनली हेल्पिंग दीज ब्लॉक्स टू मूव. क्लियर? नाउ दोनों इस 2m को और इस m को, दोनों को a एक्सेलरेशन से ही चलाना है, बट इसमें 2m को चलाना है, इसमें m को चलाना है. तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, इसमें लगेगा. कितना ज्यादा लगेगा, इट विल बी जस्ट डबल. सो लाइक दैट वी कैन डू. अदरवाइज आप सिंपल क्या कर सकते हो, फर्स्ट अगर आपको सिंपल मेथड यूज करना है, इफ यू वांट टू राइट एंड डू इट, सो यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया हमने, एक्सेलरेशन आया F by 3m. भाई आई नो ऑल द सिस्टम्स आर मूविंग विद एक्सेलरेशन F by 3m. In this case, normal has to do a work, मतलब वर्क से आप वर्क और एनर्जी वाला मत समझना, जस्ट जनरल टर्म. तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगने वाला है उसका काम है कि इसको चलाना. यहाँ पे नॉर्मल लगने वाला है उसका काम है इसको चलाना. एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, जिसमें मास ज्यादा उसमें फोर्स ज्यादा, जितना मास ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1 is to n2 will be 1 is to 2. n1 is to n2 will be 1 is to 2. So कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन 2. अब यहाँ पे अगर हमें ये पता चला कि भाई इसमें ज्यादा लगने वाला है, तो देयर आर 2 ऑप्शंस जिसमें ज्यादा लगने वाला है, 1 is to 2 and 1 is to 3. अब दिमाग लगा लो कि भाई अगर डबल मास है तो डबल ही लगेगा फोर्स, दैट्स इट. सो आंसर इज 2. एंड इफ यू वांट टू डू इट लाइक दैट, सो व्हाट विल डू, इन दिस केस वी हैव F is equal to total force, I'm sorry, A is equal to total force
divided by total mass. In this case also total force divided by total mass. Now write equation for any of this. So N1 is equal to mass into acceleration, and in this case N2 is equal to mass into acceleration. बस ये आ गया 2F/3, ये आ गया F/3. So now N1 is to N2 is 1:2. So if you want to do it like that, do it in this way. अगर आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना है कि you will be able to solve easy problems without using pen or paper, then do it in this way. At least while practicing, ठीक है टेस्ट में मत करो अभी, बट जब तक आपकी हैबिट नहीं हो जाती तब तक एटलीस्ट when you are solving the practice sheet, do it like a test paper. Try to save time. ठीक है? Make your calculations fast. Try to skip the steps while doing calculation. But while skipping the step, don't do any silly mistake. Next question is, two forces 6 and 3 Newton are acting on the two blocks of 2 kg and 1 kg kept on frictionless floor. What is the force exerted on 2 kg block by 1 kg block? Clear? So now again what we'll do, acceleration of the system is 6 Newton, 3 Newton. Net force is 3 Newton, total mass is 3 kg. So acceleration of the system is 1 meter per second square. Acceleration of the system is 1 meter per second square. Now they are asking what is the force exerted on 2 kg block by 1 kg block. तो कोई भी ले लो, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम है, 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, अगर हम देखें तो 1 kg ब्लॉक जो है, 1 kg ब्लॉक एंड 2 kg ब्लॉक बोथ आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 1 meter per second square. Both the blocks are moving in this direction with 1 meter per second square. Now on 1 kg block 3 Newton इधर से लग रहा है, 3 Newton इधर से लग रहा है. Now just see whatever will be the net force. आप अगर 1 kg ब्लॉक को लो तो कैसे हमारा इक्वेशन इजी हो गया भाई, whatever will be the net force that will be the acceleration. क्यों मैंने 1 kg ब्लॉक लिया, यहाँ पे क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं बट आपको काम आएंगी. दिस इज 2 kg ब्लॉक, दिस इज 1 kg ब्लॉक. ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन एंड फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज 3 न्यूटन. ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया F/m is equal to 6 minus 3, that is 3 divided by 3, 1 meter per second square. Acceleration of the system is 1 meter per second square. Now what I can do, if I see this block, इस पे क्या होगा, यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल इन दिस डायरेक्शन. 2 kg पे कैसा लग रहा होगा, इस साइड, 1 kg पे ऐसा इस साइड टुवर्ड्स द बॉडी. So 6 minus n is equal to net force is equal to mass into acceleration. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, 6 न्यूटन लग रहा है इस पे, इधर 6 न्यूटन लग रहा है, इस साइड 6 न्यूटन लग रहा है एंड इट इज मूविंग, और इधर n लग रहा है जो कि हमें फाइंड आउट करना है. So इस साइड 6 न्यूटन एंड इन दिस डायरेक्शन देयर इज अ फोर्स n एंड दिस सिस्टम इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a. इट मींस क्या होना चाहिए भाई, इस पे होना चाहिए नेट फोर्स, क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन a से अगर जा रहा है तो इस पे नेट फोर्स होना चाहिए 2. तो हमारे पास यहाँ पे n क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4. ठीक है, बट अगर आप 1 kg ब्लॉक को देखो तो 1 kg ब्लॉक जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है. 1 kg ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है. ठीक है, नाउ इस पे एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन. ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन. नाउ आई एम सेइंग कि इस पे 1 kg इसका मास अगर है तो whatever is the force is equal to acceleration आ जाएगा. whatever is the force is same as acceleration because mass is 1. so अगर इस पे 3 न्यूटन इधर है, acceleration 1 उधर है, it means क्या होना चाहिए, net force 1 उधर होना चाहिए ना. if acceleration is equal to 1 is there in this direction, it means net force on this object should be 1 in this direction. तो सीधा क्या करेंगे, इधर 3 लग रहा है, इधर 4 लगेगा, खत्म. इधर 3 लग रहा है, net force is 1 न्यूटन. why? because acceleration 1 है, mass 1 है, तो whatever is the acceleration उतना ही फोर्स लगना चाहिए उस डायरेक्शन में. तो 3 न्यूटन इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन 1 उधर है, मास 1 है, इसलिए नेट फोर्स इज सेम एज एक्सेलरेशन. सो अगर एक्सेलरेशन 1 इधर है इट मींस नेट फोर्स 1 इधर होना चाहिए. 3 अगर इधर लग रहा है इट मींस 4 उधर लगना चाहिए. क्लियर है ये चीज. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विल बी 1 न्यूटन, सॉरी 4 न्यूटन इन, हाँ 4 न्यूटन लगेगा इनके बीच में. अगर आप डायरेक्शन की बात करो तो 1 kg पे कैसा लगेगा,
इधर 3 न्यूटन, इस पे इधर 4 न्यूटन। अगर आप 2 kg की बात करो तो इधर इस पे 4 न्यूटन, इधर इस पे 6 न्यूटन। क्लियर है? सो लाइक दैट वी कैन डू। हर प्रॉब्लम में ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें निकाल के देखनी है एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द इजियर वे, है ना। जब आप आगे सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू skip the steps and save your time. B3. A force vector applied on a mass is represented as 6 I cap minus 8 j cap plus 10 k cap and accelerates with 1 meter per second square. What will be the mass of the body? This is very simple. Acceleration is given as 1 meter per second square. Magnitude given है तो हम क्या करेंगे? We'll calculate the magnitude of force. So magnitude of force will be 6 square plus 8 square plus 10 square root divided by mass of the body. So कितना जाएगा? This is 10 square. 10 square plus 10 square 10 root 2 divided by mass is equal to 1 meter per second square. So what will get? 10 root 2 is equal to mass. है ना? Mass will be 10 root 2 kg. First option. Question number B4. This also you can do. I hope all of you remember the 6 square plus 8 square gives us the 10 square. So 10 square plus 10 square, if you take it out of the root, it will become 10 root 2. So simply, even in this question without calculation, you can write that answer is 10 root 2. Clear है? So just what we are using? We are using F by M is equal to A. Is that very difficult to do? No. And also, this is very simple. So we can do these. If you see all the exercise 1, all the chapters, exercise 1 will be very easy. It means you can do it not in the first attempt but in second or third attempt you will be able to do it without using pen or paper. ठीक है? So try to do this. At least when you will do next chapters, try to do these exercises, all the sections in exercise 1. Please try to do it just by looking at the problems and thinking. ठीक है? Question number B4. The engine of a car produces acceleration 4 meter per second square in the car. If this car pulls another car of mass m, what will be the acceleration produced? ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? Acceleration 4 है. If we have mass m, उसके लिए acceleration कितना आ रहा है? 4 meter per second square. तो जब 2m हो जाएगा, तो definitely क्या हमारा जो acceleration है of the system will decrease. क्या हो रहा है? Force is equal to mass into acceleration. क्या किया हमने? It is given that a engine can give this much acceleration to car. Let's say A. So car mass of the car is m and acceleration कितना दे सकता है? 4. It means net force कितना दे सकता है? ma. Now what we are doing? हमने क्या किया? मास को हमने डबल कर दिया. भाई फोर्स उतना ही दे पा रहा है, मास को डबल किया मतलब एक्सेलरेशन को हाफ करना पड़ेगा. तभी तो क्या होगा? तभी इट विल रिमेन सेम. तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बिकम हाफ, विच इज 4 का हाफ कितना होता है? 2. क्या हो रहा है? हमारे पास एक कार है ऑफ मास m विच इज ट्रेवलिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका इंजन दे सकता है एक्सेलरेशन. क्लियर? नाउ वी आर अटैचिंग वन मोर कार विथ इट. ठीक है? तो अब क्या होगा? सेम फोर्स जो इंजन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेम फोर्स विल पुल अप द डबल मास ऑफ द प्रीवियस मास. तो अगर मास डबल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन को हाफ होना पड़ेगा. क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है? सो या फिर आप ऐसे प्रॉपरली कर लो तो हमारे पास अभी नेट फोर्स कितना प्रोवाइड कर पा रहा है इंजन? मास इनटू एक्सेलरेशन कितना? 4m. नाउ फोर्स कितना है हमारे पास? 4m है फोर्स. मास तो हमें गिवन नहीं है ना. हाँ, जरूरत है भी नहीं वैसे. बट नाउ अगेन हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो एक्सेलरेशन विल बी टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. टोटल फोर्स इज 2m, टोटल फोर्स इज 4m एंड टोटल मास इज 2m. कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है? दिस प्रॉब्लम ऑल्सो यू कैन डू इट विदाउट पेन पेपर. B5. A force of 6 Newton acts on a body at rest of mass 1 kg. During this time, the body attains a velocity of 30 meter per second. The time for which the force acts on the body is. So now in this case, either you can do it with the help of काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स का सिंपल क्या लगाओ? एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो. फोर्स गिवन है, मास गिवन है. इट मींस एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. फोर्स इज 6, मास इज 1, एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी इज 30. सो डेफिनेटली यू कैन फाइंड इट आउट.
v is equal to u plus at. In 1 second, if in 1 second acceleration कितना आया 6 meter per second square, it means in 1 second the body is gaining 6 meter per second. In next second it will have 12, फिर 18, फिर 24 and then 30. So in 5 seconds it will gain 30 meter per second velocity. So आंसर आ गया आपका 5 सेकेंड. So you can do it like this. और आप कैसे कर सकते हो? आप कर सकते हो डेल्टा p by डेल्टा t से. So this was the easiest way. Simple. हमने क्या किया भाई, force given है, mass given है, we can find out acceleration, final velocity given है. Why can't you find the velocity? Definitely we can. अगर ऐसे नहीं करना है तो क्या कर लो, चेंज इन मोमेंटम लगाओ, फॉर्मूला लगाते रहो फॉर्मूला. लेकिन कोई मतलब है उस बात का नहीं, क्योंकि आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो, वॉट एवर यू आर यूजिंग, F is equal to डेल्टा p by डेल्टा t, that is nothing but वो फॉर्मूला फाइनली डिराइव होके तो वही आता है ना जो अभी हमने किया. ठीक है कि एवरी सेकेंड जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड गेन हो रही है. इट मींस इन 5 सेकेंड्स इट विल गेन 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. बट इफ यू वांट टू डू इट विथ डेल्टा p by डेल्टा t is equal to f, then do it. तो क्या है हमारे पास F is equal to डेल्टा p divided by डेल्टा t. F is 6 न्यूटन. डेल्टा p क्या हो जाएगा, mv फाइनल माइनस mv इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है, mv फाइनल इज m is 1 kg, v फाइनल इज 30, दिस इज 0. सो क्या आ गया 6 into t is equal to 30, t is equal to आ गया 5 सेकेंड्स. ठीक है, सो ऐसे कर लो, ऐसे करना है तो ना करो तो अच्छा है. 5 seconds, fourth option. B6, a body of mass 40 gram is moving with a constant velocity of 2 centimeter per second on horizontal frictionless table. The force on the table is. So it is moving with a constant velocity. If it is moving with a constant velocity, it means इस पे कोई forward direction में भी acceleration नहीं है. And हमें उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता. हमें क्या पूछा है कि force acting on this table. The force on the table is. तो force on the table भाई अपना टेबल पे चुपचाप जा रहा है ब्लॉक. Now force on the table, this is 40 ग्राम. So क्या होगा, इस पे लगेगा mg, 40 by 1000 into g, ये हो गया mg and equals to normal. So normal force, when normal force will act on the block will apply normal force on table. So normal force will be acting on the table, which is equal to this. Now they are asking in dyne. तो आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, ये होता है. तो ये तो क्या आएगा न्यूटन में, m into g. न्यूटन को क्या करो, रिप्लेस करो विद डाइन, 10 to the power 5. तो क्या आ गया 3. तो ये आ गया हमारे पास 4, 1 2 3 4, 40,000. Okay, so they are using g is equal to 9.8. So please put g is equal to 9.8. You will get answer 39200. And definitely from here you can get कि हमने 10 रखा g को, we got 40,000. अगर g को 9.8 रखेंगे तो 39.2 आ जाएगा. ठीक है, 39200 9. क्लियर. सो B6 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन.